اور اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی جانب سے آج پھر پنچ کے قصبہ اور کرنی سیکٹروں میں بلا اشتعال گولہ باری کی گئی۔ پاکستان مسلسل رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فوج بھی پاکستان کی اس کارستانی کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ گولہ باری کی وجہ سے لوگوں میں کافی خوف ہے۔ گزشتہ رات پاکستان نے گلپور سیکٹر میں بھی گولہ باری کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان دراندازوں کو ہندوستانی علاقوں میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر چوکس فوج انہیں ایسا کرنے نہیں دے رہی ہے۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر میں آج مزید 14 افراد کے ٹیسٹ مثبت پائے گئے۔ اب یوٹی میں وائرس متاثرہ افراد کی تعداد 314 ہو گئی ہے۔ ان میں 260 کشمیر میں ہیں، جموں میں 54 کیس ہیں۔ اب تک 4 مریضوں کی موت بھی ہو گئی ہے۔ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ 38 مریض اب تک صحت یاب بھی ہو گئے ہیں۔ آج اسکم سے 2 مریضوں کو صحت یاب ہونے کے بعد ڈسچارج کیا گیا۔ اس بیچ وادی کشمیر میں لاک ڈاؤن کو سختی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ مختلف ریڈ زون والے علاقوں کو سیل کر دیا گیا۔ سری نگر شہر میں 14 علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں پولیس کے ناکے قائم ہیں۔ ایمرجنسی میں ہی لوگوں کو چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لوگوں سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ جموں میں انتظامیہ مرکز کی جانب سے اعلان کردہ لاک ڈاؤن پر عمل آوری میں سنجیدگی اور سختی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ اگرچہ پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب ہے، مگر نجی گاڑیوں کے نقل و حمل میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ٹی وی اسکرین پر یہ نظارے جموں کے وکرم چوک اور جیول علاقے کے ہیں۔ ان تصاویر میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن 2 میں نجی گاڑیوں کی نقل و حمل کافی بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ میڈیا کی جانب سے معاملے کو اجاگر کرنے کے بعد گزشتہ دنوں کے بنسبت آج نجی گاڑیوں کی نقل و حمل تھوڑی کم رہی، تاہم اس کے باوجود یہ امید سے زیادہ ہی رہی۔ وکرم چوک میں پولیس کو متحرک دیکھا گیا، وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر آ رہے لوگوں کو روک رہے تھے۔ اس بیچ جموں کے ریڈ زون والے علاقوں میں صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کی کرائسس ریسکیو ٹیم نے ایس ایس پی جموں ایس پاٹل کی ہدایت پر ڈرون کی خدمات حاصل کی۔ ان کے ذریعے لوگوں، نقل و حرکت اور خلاف ورزی کرنے والوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ آج باہو فوٹ اور بٹنڈی میں ان کا استعمال کیا گیا۔ لداخ میں کرونا وائرس کا شکار ہوا پہلا شخص اب صحت یاب ہو گیا ہے۔ اسے اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹروں، نیم طبی عملے و دیگر حاضرین نے انہیں روانہ کرنے کے لیے دوران گرم جوشی کا اظہار کیا۔ لداخ میں اب 4 پازیٹیو کیس ہیں، ان میں 3 لیہ اور 1 کرگل سے ہے۔ ضلع انتظامیہ راجوری کی محنت رنگ لائی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے لوگوں کے تعاون سے کرونا وائرس کی زنجیر کو توڑ دیا۔ ڈی سی راجوری محمد نذیر شیخ نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ضلع میں کوئی بھی مثبت کیس نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں جتنے بھی نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تھے ان سب کا رزلٹ منفی پایا گیا۔ ڈی سی نے یہ بتایا کہ جو مثبت کیس آئے تھے ان کا بھی اب ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ ڈی سی نے کہا کہ ضلع بھر میں حالات قابو میں ہیں۔ موجودہ حالات کی وجہ سے کشمیر کے سینکڑوں تاجر، طلباء اور مزدور ملک کی مختلف ریاستوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے یہ مسئلہ مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھایا۔ وہ امید کر رہے ہیں کہ ان تمام افراد کو جلد واپس لایا جائے گا۔ KCCI کے صدر شیخ عاشق نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے صوبائی انتظامیہ کو 1 لاکھ ماسک فراہم کیے ہیں۔ یہ ماسک غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ چیمبر نے لوگوں سے گھروں کے اندر رہنے کی تلقین کی۔ باہر تھے کسی بھی کام سے، ایون جو لوگ پیشنٹس کے ساتھ چلے گئے تھے، ہم نے ابھی ریاستی جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں، بہت میل آئے ہمارے پاس کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، فون آتے ہیں ہر دن کہ آپ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھا دیجئے، اور یہ مسئلہ ہم نے سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی اٹھایا ہے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ باہر ہیں
क्योंकि अभी एक टाइम हो गया, अरसा एक हो गया, वो लेबर भी नहीं है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं, कोई पेशेंट के साथ गया तो लिक्विडिटी क्रंच भी हो सकता है, फैमिलीज़ के साथ भी है। तो हमने एक रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द 2-4 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, मगर उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो अपने आहलो अयाल के साथ आ जाए। पूरा चैम्बर अभी जो इनिशिएटिव लिया आज मास्क कश्मीर का, आज हमने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में कहा इनको कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये होना चाहिए, ताकि इनके पास एक, हमने इसलिए ये किया चूज़ क्या कि इनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही जुड़ा हुआ है, इनके साथ मैन पावर जुड़ा हुआ है। और एट द सेम टाइम अपील करते हैं लोगों से कि जो अभी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वही लोग बाहर आ जाएं, वही दुकानें खुलें, बाकी अपने घरों में बैठें और एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने लखनपुर के करीब जीएमसी कठुआ का दौरा किया। उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए खान ने कहा कि इंतजामिया पूरी चौकसी बरत रही है। उन्होंने कहा कि बैरून रियासत फंसे लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खान ने कहा कि वो मुतल्लिका रियासतों की हुकूमतों के राब्ते में है, उन्हें वापस लाने की तैयारी की जा रही है। कश्मीर में केसेस की तादाद बढ़ने के हवाले से फारूक खान ने कहा कि हुकूमत वादी में दिन रात काम कर रही है। रेड जोन इलाकों पर खास तवज्जो मरकूज है। उन्होंने कहा कि यूटी में कोरोना के खिलाफ जंग से मुंसलिक लोग काबिल सताइश काम अंजाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं सर, उनको कब तक लाया जाएगा? देखिए, वो केस टू केस बेसिस के ऊपर होता है। जो जहाँ पे भी हैं, हमारी हेल्पलाइंस चल रही हैं सब जगह पे और लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी हमारे बच्चे फंसे हैं या हमारे यूटी के रहने वाले लोग फंसे हैं किसी भी वजह से, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 35,000 से ज़्यादा तो मज़दूर ही डिफरेंट स्टेट्स में है। इसी तरह फिर स्टूडेंट्स हैं हमारे बहुत सारी जगहों पे, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ट्यूशन्स के लिए गए थे, कुछ कोचिंग के लिए गए हुए थे। उन सब का डाटा भी कलेक्ट हो रहा है। उनको हम उनके लाने का हम तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर मैं आपके माध्यम से मैं उन सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जिस जगह पे है वो वहीं पे रुका रहे और इंतज़ार करे जब हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी मूवमेंट करवाएंगे। उस वक्त तक वो अपनी जगह ना छोड़ें। हमने जिस स्टेट के साथ या यूटी के साथ ये बात की है, उन सब ने बहुत हमें कोऑपरेट किया है और हमारे लोगों का पूरी तरह ध्यान भी रखा है। सर, जम्मू के मुकाबले कश्मीर की तरफ काफ़ी केसेस आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? कश्मीर में भी तैयारियाँ उसी तरह हैं। ये लड़ाई में कोई मोर्चे पर ज़्यादा बड़ी लड़ाई होती है, किसी मोर्चे पर थोड़ी कम होती है, लेकिन लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है। और कश्मीर में भी हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सारी अथॉरिटीज़, सिविल अथॉरिटीज़ वो दिन रात काम कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि कश्मीर में भी जो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, इस वजह से कुछ एरियाज ज़्यादा रेड जोन में आ गए, हॉट एरियाज डेवलप हो गए, हॉट स्पॉट्स डेवलप हो गए, उन सबको कंट्रोल में कर लिया जाए। कुपवाड़ा में एक पुलिस अफसर के बेटे का टेस्ट मुस्बत आया है। उसके पेश नज़र मुतल्लिका पुलिस अफसर और उनके मुहाफ़िज़ों समेत दर्जनों पुलिस एहलकारों को एहतियात के तौर पर पुलिस क्वारंटाइन में रखा गया है। पुलिस ने अफसर के तमाम अहल खाना को एहतियात के तौर पर पुलिस क्वारंटाइन में रखा है। जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ रही है और इस बीच पुलिस सब इंस्पेक्टर के बेटे के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की खबर ने जिला भर में पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी और अब तक 40 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को एहतियाती तौर पर क्वारंटाइन किया गया है। नेटवर्क 18 के लिए याया सुल्तान। गजहमा गांदरबल में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया। इलाके को एक हफ्ता पहले ही रेड जोन करार दिया गया था। मुस्बत मरीजों के राब्ते में आए अफराद को क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। उनके नमूने टेस्ट के लिए रवाना किए गए हैं। जिले में मुस्बत केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डीसी गांदरबल खुद सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने इलाके का दौरा किया। उन्होंने रेड जोन इलाकों में लोगों को घरों तक ज़रूरी अशिया पहुँचाने की हिदायत दी। सर्विलेंस टीमें मजीद मुतहर्रिक हो गई हैं। देखिए, जो हमारी टीम्स हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है और सैम्पलिंग है।
तभी जाकर हमें ये पता चलता है कि कौन कौन लोग इन्फेक्ट हुए हैं और वक्त और टाइमली उसका ताकि सदेबाब भी किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने और उनके जो हमारे 8 केसेस जो कल नए आए उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो कुछ 28 के करीब हमने आइडेंटिफाई किया हमारी टीम ने, उनको भी हमने हॉस्पिटल क्वारंटीन में रख दिया है। और उसके अलावा जो ये 8 केसेस हैं इसको हमने इमीडिएटली कल ही शाम को हमने इनको हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल है गांधरबल उधर शिफ्ट करके रखा हुआ है। रटसन बिरवा इलाके को सील कर दिया गया है। इंतजामिया ने मकामी लोगों के साथ मिलकर रटसन जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया। लाउड स्पीकर के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन कर रही थी। इलाके में सख्त चौकसी बरती जा रही है। जिस तरीके से आज रटसन बीरवा में एक पॉजिटिव केस की खबर सामने आई है और उसके बाद जो इंतज़ामिया है वो मुतहरक हो गया है और यहाँ रटसन में इंतज़ामिया ने या लोकल मुकामी लोग जो थे उन्होंने बाज़ाब्ता डोज़र लाया और यहाँ पे डोज़र के ज़रिए से जितने भी रटसन जाने वाले एंट्री पॉइंट्स है उनको यहाँ पे बाज़ाब्ता खोदा जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। और यहाँ जो जम्मू कश्मीर पुलिस भी है वो गाँव में जाकर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वो घरों में रहे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, रटसन बीरवा। जिला कुलगाम में कई इलाकों को पहले ही रेड जोन करार दिया गया है। इन इलाकों में इंतजामिया राहत के काम में जुट गई है। लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए अशाया ज़रूरिया पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। इंतजामिया ने महकमे CAPD और मकामी रजाकारों के हमरा इन इलाकों में राशन और दीगर अशिया पहुंचाने का काम शुरू किया है। DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट के मुताबिक ये अमल आइंदा भी जारी रहेगा। ज़िले में आज भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मालूम है कि हमारे ज़िले में भी अभी तक 4 पॉजिटिव केसेस हुए हैं जिससे हमने 3 इलाके रेड जोन डिक्लेयर किए हैं। तो इन इलाकों में जहाँ तक एसेंशियल सप्लाईज, मेडिसिन्स, मिल्क, इसके लिए हमारे 2 वॉलंटियर ग्रुप्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दे आर अंडर विद प्रॉपर गियर। एसेंशियल सप्लाईज जो है CAPD ने अभी तक 2 महीने का एडवांस राशन जो है हमने 100% लिफ्ट किया है और इस वक्त 90% हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने रेड जोन वाले इलाकों में सब्जियों की मुफ्त होम डिलीवरी के लिए लाहेमल मुरतब किया है। इस सिलसिले में पारिमपुरा में एक मंडी कायम की गई है। 50 से ज़्यादा लोड करियर गाड़ियां ताज़ा सब्जियां मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाएंगी। इसके अलावा कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। रेड जोन इलाकों में मेडिकल इमरजेंसी के लिए ये कंट्रोल रूम कायम है। हमने कुछ कंट्रोल रूम्स जो हमने बनाए हैं जो कि रेड जोन के बाहर हमने कुछ कंट्रोल रूम्स बना के रखे हैं जो कि जहाँ पे हमने अपने वॉलंटियर्स रखे हैं जो बाज़ाब्ता PPE गियर्स में बैठे होते हैं। तो वहाँ पे भी हम कुछ ऑटोज़ रखेंगे और रेड जोन्स में जो हमने नंबर्स ऑलरेडी कंट्रोल रूम के हमने सर्कुलेट करके रखे हैं और वो उन नंबर्स पे वहाँ के लोग उन नंबर्स पे कॉल करके वहाँ अपनी वेजिटेबल्स की डिमांड कर सकते हैं और हमारे वॉलंटियर्स उनको घर। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की हिदायत पर तहसीलदार पामपुर इश्तियाक मोहिउद्दीन ने कस्बा पामपुर और मज़ाफ़ाती इलाकों में कोविड-19 टीमें तश्कील दी हैं। वो हर इलाके में रिहायशी मकानों पर अपना एक कोड दर्ज करती हैं। इससे कोरोना जैसी मौलिक बीमारी का जल्द ही पता लगाया जा सकता है। तहसीलदार का कहना है कि अगर किसी इलाके में कोई केस सामने आएगा तो उस वक्त इलाके को रेड जोन करार देने में इंतज़ामिया को कोई परेशानी नहीं आएगी। इस वक्त घर घर जाकर सर्वे कर रही है। सर्वे करके वो हर घर को एक सर्वे नंबर अलॉट कर रहे हैं, कोविड सर्वे नंबर, और इसके अलावा हर घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स दी जा रही है। और इसका मकसद ये है कि खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव केस कल को यहाँ कहीं भी डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद इमीडिएटली हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया जाता है। तो उसी हवाले से कि जो तैयारी हम बाद में करें वो हम पहले से कर रहे हैं। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम। श्रीनगर के बाग गुल आलम में इन दिनों फूल पूरी तरह खिल गए हैं। मुख्तलिफ अक़साम के ट्यूलिप से बाग में दिलकश नज़ारे देखने को तो मिल रहे हैं, मगर कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल की वजह से बाग को बंद कर दिया गया है। बाग के बंद रहने से बड़ी तादाद में सियाहत से जुड़े अफराद की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। श्रीनगर में वाक़ई शोहर आफाक इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में इन दिनों सन्नाटा छाया हुआ है। एशिया के इस सबसे बड़े बाग़े गुलेलाला को कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल की वजह से बंद कर दिया गया है। बाग में फूल अपने शबाब पर हैं, मगर ये बाग सयाहों से खाली है। किसी को भी बाग के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इंतजामिया को उम्मीद थी कि रमा बरस 2.5 लाख से ज्यादा सयाह इस बाग की सैर करने पहुंचेंगे। बाग में 50 से ज्यादा अक़साम के ट्यूलिप के फूल हैं। इनमें बेशतर हॉलैंड से दरामद किए गए थे, मगर कोरोना वायरस की वजह से सब बेकार पड़ा है। बागबानों ने भी अपना काम वक्त पर मुकम्मल किया था। मार्च के आखिर तक बाग के खुलने की उम्मीद थी, मगर कुदरत को इस मर्तबा कुछ और ही मंजूर था। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त के बाद कश्मीर में सयाहती सनत को काफी धचका लगा है। ऐसे में इस बाग का खुलना पहले से खस्ता हाल सयाहती सनत के लिए काफी अहम समझा जा रहा था। कोरोना वायरस ने ताहम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एशिया के सबसे बड़ा टूलिप गार्डन आज अपने पूरे शबाब पे है, ताहम कोविड-19 के चलते बाकी बागात के साथ साथ इस बाग को भी बंद कर दिया गया है। 50 वैरायटीज़ के 13 लाख टूलिप्स यहाँ पे इस बारी लगाए गए थे और उम्मीद की जा रही थी कि 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन टूलिप्स को देखने के लिए आएंगे, जबकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 2.5 लाख के करीब यहाँ पे लोग आए थे इन टूलिप्स को देखने के लिए। ताहम इस बारी कोविड-19 के चलते इस बाग को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और यहाँ पे एक भी टूरिस्ट अभी तक नहीं देखने को इसको आया है। सयाहत के हवाले से इस बारी इस बाग का खुलना बहुत ही अहम माना जा रहा था, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री को एक धचका लगा, उस धचके को फिर से एक बार संभालने के लिए बताया जा रहा था कि इस बाग का खुलना काफ़ी अहम है। ताहम उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। टंगमर्ग में लॉकडाउन के बीच जंगल स्मगलरों की कारस्तानी उरूज पर है। टंगमर्ग के मुख्तलिफ जंगलात में जंगल चोर लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर सरसब्ज सोना काटने में सरगर्म है। आज जो ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और महकमे जंगलात के मुलाजमीन को इतला मिली तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में लकड़ी जब्त की। अभी भी जंगल में काटी गई लकड़ी मौजूद है। रेंज अफसर के मुताबिक अभी तक मुलविस अफराद की निशानदही नहीं हो पाई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने कंपार्टमेंट 63B बद्रकोट ब्लॉक से जब्त की है और दूसरी जगह भी हमने कार्रवाई लाई है कंपार्टमेंट 28 गुल कलंतरा ब्लॉक में, लेकिन वो लकड़ी इस वक्त हम काट डाउन कर रहे हैं। एक तो मौसम खराब था, दूसरी बहुत सारी परेशानियां हैं। इस वक्त लेबर अरेंज करना भी बहुत मुश्किल काम है। अभी कोई गिरफ्तारी है क्योंकि रात के दौरान हुआ था, लोगों ने नाजायज फायदा उठाया हालातों का, रात के दौरान गए थे और मौसम भी जबरदस्त खराब था। हम इसके तलाश में हैं कि पता बरारी हम लगा रहे हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ हम FIR लॉन्च करेंगे। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की हिदायत पर रंबियारा नाले पर गुडविल स्कूल के करीब 2 ट्रैक्टर सील किए गए हैं। तहसीलदार के गांव और पुलिस की एक टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी। खिलाफ वर्जी करने की पादाश में कार्रवाई की गई है। टिकरो, पशपुरा, नाजनीनपुरा और मुल्हिका इलाकों के लोगों ने डीसी शोपियां के अलावा न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। जगती टाउनशिप नगरोटा जम्मू में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट सरापा एहतजाज हैं। कॉलोनी में साफ सफाई के फुकदान को लेकर वो नाराज हैं। कॉलोनी में 4500 के करीब कश्मीरी माइग्रेंट मुकीम हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद कॉलोनी में सेहत व सफाई की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। उनका इल्ज़ाम है कि माकूल छिड़काव और सफाई भी नहीं की गई है। उन्होंने रिलीफ कमिश्नर से इक़दामात की अपील की। से ये डिमांड करती हूँ कि गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी रखी है, लेकिन यहाँ पे सैनिटाइज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सारा नाली भी गंदी है, इतनी नाली गंदी है कि सारा पानी बाहर आता है, सारी गंदगी फैलती है। वो क्या करेंगे बेचारे, वो तो ये बेसिकली नालियों के लिए, जो फुल मकान के लिए या ऊपर कमरों में जाते ही नहीं है। ऊपर भी होना चाहिए गाड़ियों के ऊपर, जैसे जम्मू म्यूनसिपलिटी के पास वैक्यूम है, उनके पास सामान है, वैसे हम चाहते हैं कि हमने बहुत बार इनको बोल दिया
कमिश्नर साहब को हमने मैसेज भेज दी। इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सैनिटाइज नाम के लिए किया, पानी डाल दिया, पानी का वो उसना कोई स्मेल थी ना कुछ है। हमको चाहिए नया सैनिटाइज जो स्मेल रहेगी 8-10 दिन के लिए, इतना कम से कम होना चाहिए, जो यहाँ की पूरे के जो इलाका है पूरा नया दोबारा होना चाहिए। जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़े सेहोरा गांव के लोगों ने इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि गांव के ज़्यादातर लोग यौमिया मजदूर हैं और लॉकडाउन की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। वो अपने अहल खाना के लिए राशन का इंतज़ाम करने से कासिर हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया की जानिब से किसी ने इनकी मुश्किलात जानने तक की कोशिश नहीं की है। उन्होंने मुफ्त राशन की मांग भी की है। उसका पूरा अमल हुआ है, लेकिन अमल के साथ साथ रोटी और रोजी भी चाहिए, खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए, जो आज तक मिला ही नहीं। अभी लोग परेशान हैं, उनको इतनी दिक्कत आ रही है पैसे की और खाने पीने की, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। परेशानी है, अंदर बैठे हैं, कोई दिहाड़ी लाने वाला नहीं, सो भी वो भी काम बंद है, कोई खाने पीने नहीं किश, कोई गल नहीं बात नहीं, कोई इत्थे आया ना किसी ने सानू कोई पुछया। जनाब महीने को भी उपर दिन होई गए, इत्थे कोई भी पुछन नहीं आया सानू कि तुस के खा रहे हो या नहीं खा रहे। तो ये असी हारिए तुसें गी फोन किया, असें तुसें बुलाया, तुसें साड़ी बड़ी इज्जत की है, तो साढ़े 10-20 बंदे ने जेड़े इन्हें गी राशन दिता जाए तो अपना पेट पालन। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और उनके अहल खाना से पीएम केयर्स में अतिया जमा करने को कहा है। रविंद्र रैना ने राहुल गांधी के दिए गए मशवरों का खैर मकदम किया है। रैना ने ताहम कहा कि उन्हें खुद भी अतिया देना चाहिए। कोरोना वायरस पर सुझावों के साथ साथ श्री राहुल गांधी जी को, उनकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी को, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जी को और उनके जीजा मिस्टर वाड्रा को पीएम केयर्स फंड में अपना आर्थिक योगदान भी देना चाहिए, आर्थिक सहयोग करना चाहिए। देश के करोड़ों लोगों ने पीएम केयर्स फंड में आर्थिक सहयोग किया है, लेकिन राहुल गांधी जी और उनके पूरे गांधी परिवार ने कोई योगदान अभी तक नहीं किया है। हम राहुल गांधी जी को भी ये सुझाव देते हैं कि देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, देश की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सरकार का सहयोग करें, देश की मजबूती के लिए कार्य करें और पीएम केयर्स फंड में खुद और अपने पूरे परिवार का वो योगदान करें। यही देशभक्ति होगी। उनके सुझाव के साथ साथ उनका आर्थिक सहयोग भी पीएम केयर फंड में आए, ऐसी भी देश उनसे अपेक्षा करता है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचाया हुआ है। एक तरफ जहां इंतजामिया लोगों से बार बार ये अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही रहें, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। बडगाम का यूनुस नामी नौजवान इसकी एक मिसाल है। यह है जिला बडगाम से ताल्लुक रखने वाला यूनुस अहमद मीर नामी नौजवान। यूनुस ने अपने आप को क्वारंटाइन सेंटरों में काम कर रहे डॉक्टरों की खिदमत के लिए वक्फ किया है। यूनुस हर रोज डॉक्टरों के लिए 2 वक्त का खाना और दिन में 2 बार चाय फराहम करता है। इस काम के लिए यूनुस को अब इंतजामिया की तरफ से भी कुछ माली मदद फराहम की जा रही है। ये जो सब डॉक्टर साहिबान है जो और पैरामेडिकल स्टाफ है, ये इस वक्त फोर फ्रंट पे वार लड़ रहे हैं अगेंस्ट द कोविड-19। तो मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने भी सोचा कि मेरा भी पार्ट रहे, जैसे डॉक्टर साहिबान दूसरों की मतलब हिफाजत करते हैं, इस वक्त इनकी हिफाजत को और करेगा। सो आई चूज़ माई सेल्फ, आई प्रोवाइड देम डिनर लंच ऑन टाइम, ताकि इनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यूनुस का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हालात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। यूनुस का ताहम मानना है कि इस मुश्किल सूरत हाल में नौजवानों को अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों को अपने अपने हिसाब से मुस्तहक अफराद और इमरजेंसी खिदमात अंजाम देने वालों की मदद करनी चाहिए।
मैंने अपनी ज़िंदगी दाव में लगाई है क्योंकि शायद हो सके मैं भी इन्फेक्ट हो सकता हूँ, पर इसकी परवाह किए बिना मैं वॉलंटियर निकला क्योंकि जो जवान है इस वक्त जवान को सामने आना चाहिए। मैंने घर वालों से डिस्कस किया, उन्होंने बोला नहीं क्योंकि इसमें आपको इन्फेक्ट होने का खतरा है। उसके बावजूद मैंने बोला कोई नहीं, मेरा भी रोल होना चाहिए। यूनुस जैसे नौजवान इस वबा से लड़ने में इंतजामिया के शाना बशाना खड़े हैं। यूनुस जैसे कई दीगर नौजवान भी मौजूदा मुश्किल हालात में अपने आप को रजाकाराना तौर पर जरूरतमंदों और दीगर लोगों की मदद करके काबिल सताइश काम अंजाम दे रहे हैं। यूनुस कोरोना के वबाई सूरत हाल के दौरान अपने पेशे से बढ़कर फर्ज को तरजीह दे रहे हैं। कोरोना के कहर से बचने के लिए जहां पर कोई जान बचाने में लगा हुआ है, वही यूनुस कोरोना के जंग में पेश डॉक्टरों और तिब्बी अमले के लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, बडगाम। कस्बा पुलवामा समेत ज़िले के काकापुरा, राजपुरा और दीगर मकामात पर बंदिशें आयद हैं। ज़िला पुलवामा में भी मुख्तलिफ इलाकों में मकामी रज़ाकार अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। राजपुरा पुलवामा के नौजवानों की जानिब से राजपुरा और मुहल्लिका देहात में कोरोना से बचने की जानकारी फराहम की जा रही है। सैनिटाइजेशन का काम भी अंजाम दिया जा रहा है। ये रज़ाकार अफराद आम लोगों में मुफ्त मास्क और दीगर सामान तकसीम कर रहे हैं। काकापुरा के देहात में कई रोज़ से अंसारुल मसाकीन नामी रज़ाकार तंजीम की जानिब से लोगों में बेदारी पैदा करने के अलावा मुफ्त मास्क और दीगर सामान तकसीम करने की मुहिम जारी है। गांव के यंगस्टर्स ने एक वॉलंटियर ग्रुप खोला है जिसका नाम RVDC, राजपुरा वॉलंटियर्स डेवलपमेंट कमेटी है। हम क्राउडेड जो पब्लिक प्लेसेस है जैसे बैंक या हमारा यहाँ CAC हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोगों को फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लोगों को दूर रखते हैं ताकि वो इस पेंडेमिक से महफूज रखे। तो इसका गजहामा उड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल हमीद नामी एक नौजवान भी रज़ाकाराना तौर पर लोगों को इस मौलिक मर्ज से बचाने के लिए अस्पतालों और दीगर इदारों में अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव करने का मकसद लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है। और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक सैनिटाइजेशन का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, तो मेरी ये कोशिश थी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हमारे फर्स्ट रेस्पॉन्डिंग, जैसे अस्पताल है, पुलिस स्टेशन है या बैंक है, जहाँ पे लोगों की ज़्यादा आवाजाही है, वहाँ पर सैनिटाइज करें। लड़ रहे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकारों की जम्मू में लोगों ने आरती उतारी और फूल निछावर करके इनकी हौसला अफजाई की। लोगों का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाया है और हमें इसका एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में काम करने वाले लोगों की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में ये जो महामारी का सिलसिला चल रहा है, इसमें हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो काम कर रहा है वो सराहनीय है। आज हमने उनका धन्यवाद किया है आरती करके। बेलिसा में SSB के जवान असिस्टेंट कमांडेंट जी सिंह की क़यादत में समाजी खिदमात को अंजाम देने में सरगर्म है। वो लॉकडाउन के दौरान लोगों की खिदमत में दिन रात काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के नफाज के साथ साथ ज़रूरतमंदों की भी मदद कर रहे हैं। ज़रूरतमंदों तक खाने पीने का सामान, अद्वियात व दीगर सामान पहुँचा रहे हैं। बेलिसा सिविल सोसाइटी ने SSB के काम की सताइश की। आदमी को स्क्रीनिंग की जा रही है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। किसी भी आदमी को बिना मास्क के यहाँ पे हम उनको पास नहीं दे रहे हैं। कि किसी गाड़ी वाले को जिसके पास पास नहीं है उसको पुलिस की मदद से उसकी स्क्रीनिंग करके उसको रुकवा रहे हैं। कुलगाम पुलिस ने कस्बे के रेड जोन इलाके में अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल मिलाई। खाने पीने की अशिया को ज़रूरतमंदों में तकसीम किया गया। इस काम में मकामी रज़ाकारों ने पुलिस का साथ दिया। पुलिस आने वाले दिनों में ये काम जारी रखने का मंसूबा रखती है। रेड जोन होने के बावजूद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चकतान करगिल लोगों की खिदमत में मसरूफ़ है। हेल्थ सेंटर में काम कर रहे मुलाजिम मरीजों का पूरा ख्याल रखते हैं। हेल्थ सेंटर में एक हामिला खातून का इलाज किया गया और उसने बच्चे को जन्म दिया। ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर ज़ोहरा बतूल ने कहा कि बच्चा और माँ दोनों की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि स्टाफ लॉकडाउन के दौरान भी काबिल तारीफ काम अंजाम दे रहा है। तीमारदारों ने डॉक्टर ज़ोहरा और पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। मेरे पास 7:30 बजे आई, लिवर पेन में थी, माइल्ड लीकिंग भी था इनको। मैंने उधर लेबर रूम में जाके इनको एसेस किया तो इनका 2 फिंगर डायलिटेशन हुआ था, 50% सर्विस अफेसमेंट था। ये अभी ठीक ठाक है, मदर और बेबी दोनों। इसने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराया हुआ है और इनके जितने भी जो इनिशियल
बर्थ डोसेस हैं वैक्सीन के, हेपेटाइटिस बी, OPV और BCG, वो सारा बच्चे को मिल चुका है। मैं संजक गांव से आई हूँ। सुबह यहाँ 7:30 बजे पहुँची। ये मेरे पेशेंट डिलीवरी केस है, ये मेरी ननंद है। मैं इसके साथ आई थी। यहाँ पर CHC चिकन में डॉक्टर जहरा बतुल और बाकी 2 स्टाफ थे, नर्स सिस्टर सब थे। उन्होंने ये केस हैंडल किया है। यहाँ पर पेशेंट्स को इंजेक्शन। मीनामर्ग जोजिला में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस वजह से यहाँ पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। जोजिला पास से लेकर द्रास तक पूरा इलाका लगभग खाली नजर आ रहा है। चंद मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से रास्ता बंद हो गया था। आज दोपहर 2 बजे तक विजयक ने इसे साफ कर दिया। ताहम सोनमर्ग से 0 पॉइंट तक अभी रोड साफ नहीं किया गया है। IGP लद्दाख सतीश खंडारे ने जिला पुलिस लाइन्स लेह का दौरा किया। IGP के हमरा SSP LWL सरगन अकोकला भी थी। उन्होंने पुलिस लाइन्स में काफ़ी इमारतों का जायजा लिया। जिला बारामूला के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता रात तेज़ बारिश और ज़ालाबारी से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। ज़ालाबारी से हुए भारी नुकसान से किसानों और काश्तकारों में मायूसी छा गई है। मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। रफियाबाद, बुनियार, उड़ी, चंदूसा समेत दर्जनों इलाकों में ज़ालाबारी हुई है। किसानों के मुताबिक उड़ी और दीगर मुल्हिका इलाकों में कल शाम ज़ालाबारी से सेब की फसल के साथ साथ अखरोट और दूसरे मेवाजात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बांडीपुरा के पानार इलाके में गुज़श्ता शब से जारी बारिश की वजह से नाला पानार में पानी का बहाव काफ़ी बढ़ गया है। 2 गांव को जोड़ने के लिए नाले पर बनाया गया आरजी पुल बह गया है। लोगों का कहना था कि पुल बह जाने की वजह से 2 बस्तियों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। इलाके में अगरचे चंद साल कबल पुल तामील करने का सिलसिला शुरू किया गया था, ताहम एक मकामी शख्स के साथ चल रहे तनाज़ी की वजह से पुल का तामीराती काम रुका हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग में मसरूफ अमले को म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग की जानिब से PPE किट फराहम किए गए हैं। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने अनंतनाग में किट्स तक मुताल्लिकीन में तकसीम किए। हिलाल शाह ने कहा कि यह इक़दाम सरकारी अहकामात के तनाजुर में उठाया गया। हर मुलाजिम को इन किट्स का इस्तेमाल करना लाजमी है, बसूरत दीगर ऐसे मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर लॉकडाउन के मुकम्मल नफाज का जायजा लेने की गर्ज से हिलाल शाह ने अनंतनाग के कई इलाकों का दौरा किया और सैनिटाइजेशन का अमल का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पार्टी हेडक्वार्टर पर कंट्रोल रूम कायम किया है। कोरोना वायरस से मुतासर हुए अफराद की मदद की गर्ज से पार्टी ने यह इकदाम उठाया। पार्टी के सीनियर लीडरान को ये ड्यूटी दी गई है कि लोगों की शिकायतों को दर्ज किया जाए। लॉकडाउन की वजह से जिला पुंछ में भी मजदूरों की कई दिनों से बेरोजगार बैठे हैं। हुकूमत की जानिब से इन मजदूरों को कुछ इमदाद मिली, जिससे कुछ हद तक इन्होंने राहत की सांस ली। पुंछ के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर में दर्ज 80% मजदूरों के खातों में 1000 रुपए जमा किए गए हैं। मजदूरों ने इस इमदाद के मिलने से खुशी का इजहार किया। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुंछ ने कहा कि बकाया मजदूरों को आने वाले 2 दिनों में इमदाद ट्रांसफर की जाएगी। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गल्लेपल्ली शमशाबाद में 55 कश्मीरी नौजवान एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करते हैं। गल्लेपल्ली देहात के लोग इन नौजवानों को गांव से निकल जाने के लिए जोर दे रहे हैं। इन नौजवानों का ताल्लुक जिला रामबन से है। इन लोगों में कई की मांग कर रहे हैं उनको वापस घर रवाना करने के लिए इक़दाम किए जाएं। उनका कहना है कि इनके घरों में कोई दूसरा मर्द नहीं है, इस वजह से अहल खाना को मौजूदा हालात में मुश्किलात में दरपेश हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ अहमद ठाकुर ने अवंतीपुरा के क्वारंटीन सेंटर के अलावा चक्कर राजपुरा त्राल का दौरा किया। उन्होंने गुज्जर बस्ती इलाके में राशन पैकेट तकसीम किए। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया, पुलवामा और पुलिस इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। नूरपुरा शोपियां में जिला इंतजामिया की हिदायत पर मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। ACD शोपियां ने कई इलाकों में मास्क तकसीम किए। मकामी बीजेपी लीडर जावेद अहमद ने जिला इंतजामिया के इस काम की सराहना की। म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी ने वार्ड नंबर 11 में मेडिकल कैंप कायम किया। कैंप में कई लोगों का चेकअप किया गया और आयुर्वेद अद्वियात भी फराहम की गई। लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सताइश की। मुंतज़मीन का कहना है कि लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़अत मजबूत बनाने के लिए दवाएं दी गई। RDD रामबन ने देही इलाकों के लोगों में मास्क तकसीम किए। 11 ब्लॉकों में 90,000 मास्क तकसीम करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। रोज़ाना 3000 मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की।
मारूफ स्कॉलर, शायर, कलमकार और ब्रॉडकास्टर मीर गुलाम रसूल नाज़की की आज बरसी है। नाज़की को जामुल कमालात कहा जाता है और उनके कारनामे हमाजहत रहे हैं। उनका पहला शेरी मजमुआ 1948 में मंजर-ए-आम पर आया था। इसके बाद उनकी तसनीफ़ात का सिलसिला जारी रहा। अपने अदबी सफ़र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने कश्मीरी शायरी पर तवज्जो दी। मीर गुलाम रसूल नाज़की की रुबाइयात अहम अदबी सरमाया तस्वुर की जाती हैं। इसके अलावा अखलाक़ी, रूहानी और जमालियाती मौज़ूआत पर भी वो काफ़ी पकड़ रखते थे। 16 मार्च 1910 को पैदा हुए नाज़की की वफ़ात 16 अप्रैल 1998 में हुई। जब से बना गुलाम में गुलामान मुस्तफा, जर्रे को एतबार मिला आफ्ताब का। बस एक बार ऐ मेरे यूसुफ जमाल आ, बस एक बार ऐ मेरे यूसुफ जमाल आ। मखमल है फर्ज से राह ज़लीखा के ख्वाब का, मखमल है फर्ज से राह ज़लीखा के ख्वाब का। बस एक बार ऐ मेरे यूसुफ जमाल आ, मखमल है फर्ज से राह ज़लीखा के ख्वाब का। मीर गुलाम रसूल नाज़की को खराज क़दर पेश किया जा रहा है। कल्चरल अकेडमी ने भी आज उनकी बरसी मनाई। मारूफ गुलकार वहीद जिलानी ने नाज़की का कलाम पेश करके उन्हें खराज क़दर पेश किया। तो आप देखिए ये पेशकश और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। शजीर कुनी जात जानी छुति असीत अगर सपद मुलाकात करता वुछु चान कदच ग्राय बुथी छाय तन गो आख साथ आख मरगे मफाजा जानी छुटी असीत अगर सपद मुलाकात आख चीज छु यमस तसल्ली छु लबान दिल बदलांच हालात अति दोत अति रात जानी छुटे असीत अगर सपद मुलाकात लोलस जुदाई छु अकुई शजीर कुनी जात। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि।